Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome students to lecture number 27. Today we are going to talk about the international cash management. Students, जैसे कि आपको पता है कैश का लफ्ज़ आपने बहुत दफ़ा सुना है in different finance courses. Cash is basically the lifeblood of any organization. अगर हम कैश को ये कह दें कि that is basically the essential part of an organization, just like we call it a blood. जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है और ब्लड के बगैर आप ह्यूमन बॉडी का तसव्वुर नहीं कर सकते, बिल्कुल इसी तरह से कैश के बगैर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का तसव्वुर नहीं कर सकते. उसकी रीज़न ये है बिकॉज कैश इज़ द लाइफ ब्लड. कैश इज़ बेसिकली इन्वॉल्व इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस, in all kinds of investment, in all kinds of financing activities. In one way or the other, we need to have cash. हमें कैश की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास कैश होना चाहिए in order to meet our operating expenses. बहुत सारी वजहों से की वजह से हमारे पास जो है ना कैश होना चाहिए. So cash is the lifeblood of any organization. Cash is the lifeblood of any organization, and this is the most liquid asset. This is the most liquid asset that we place at the top of the current assets in the balance sheet. It can be in the form of coins, currency, coins, जो भी आपका इस तरह का, even the traveler's check जो कि easily liquidated हो सकते हैं. That is all the forms of different cash. तो कैश के बगैर हम क्यों नहीं सोच सकते ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का, बिकॉज कैश इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड इन गिविंग डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेइंग आउट द सैलरीज टू योर एम्प्लॉइज फॉर सर्टेन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज एंड लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज. तो कैश के बगैर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के बारे में नहीं सोच सकते, बिकॉज कैश इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो स्टूडेंट्स, हम जब बात करेंगे इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट की, तो थिंग्स दे आर गोइंग टू बी a little bit more complicated or more complex. उसकी reason ये है कि whenever we are talking about the cash management across the border, we are going to talk about the different currencies which we are having across the borders. जब भी हम across the border बात करेंगे different countries की, different countries they are going to have different currencies, so different forms of cash with them. तो उनको डील करने के लिए जो पेरेंट के क्या डिसीजंस होते हैं, सब्सिडरी के क्या डिसीजंस होते हैं, हमने अपने डिविडेंड्स पे करने हैं टू दी शेयर होल्डर्स, सब्सिडरी के डिविडेंड पेमेंट क्या डिसीजन होंगे. दीज आर ऑल दी रिलेटेड कंसर्न्स व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट. स्टूडेंट्स, आई स्टार्टेड विद द कैश definition of cash, why the cash management is important. Then I told you about the international cash management, और मैं आपको ये बता रही हूँ कि international cash management में since we are dealing some transactions across the border, that is why it is very important to deal with this international cash management. So the chapter objectives are number 1, to explain the difference in analyzing cash flows from a subsidiary perspective versus a parent perspective. First of all, we are going to analyze the difference in analyzing cash flows from a subsidiary perspective. एक तरफ subsidiary का perspective और दूसरी तरफ parent का perspective. हम इन दोनों के हवाले से देखेंगे कि cash flows के क्या analysis हैं and how the perspective of having the cash from the point of view of subsidiary is different as compared to that of a parent, right? Then to explain the various techniques used to optimize cash flows, cash flow की management के लिए, उसकी optimization के लिए we are going to study different techniques, and then we are going to explain common complications in optimizing cash flows. पहले techniques पढ़ेंगे, फिर उसकी complications पढ़ेंगे, and we are going to explain the potential benefits and risk of foreign investment. थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से पढ़ के सुनाना चाहती हूँ. The term cash management can be broadly defined to mean optimization of cash flows and investment of excess cash. Optimization of cash flows and excess of cash, investment of excess cash. देखिए आपके पास कैश है, कैश मैनेजमेंट का मतलब ये है
कि यू आर नॉट दैट शॉर्ट ऑफ कैश एंड यू डू नॉट हैव द आइडल कैश। दोनों सूरतें आपके पास नहीं होनी चाहिए, ना आपके पास उसकी कैश की कमी होनी चाहिए और ना ही आपके पास कैश की ज्यादती होनी चाहिए। ना तो यू आर, इफ यू आर शॉर्ट ऑफ कैश, you will not be able to make the payments on time, and ultimately your organizational performance is going to suffer, and in the long run even the share price and ultimately the profit margins and your market share. और अगर आपके पास बहुत एक्सेसिव कैश है, अगेन दैट इज नॉट वेरी वेरी सुटेबल कंडीशन। उसकी रीजन ये है कि आप जो एक्सेस कैश आपके पास अवेलेबल है, यू माइट हैव इन्वेस्टेड दैट पर्टिकुलर कैश इन सम प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी। एक्सेस कैश को आप किसी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो एक्सेसिव कैश को अपने साथ मत रखें, बल्कि उसको किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के अंदर इन्वेस्ट कर दें। सो वी आर स्टडिंग टू कॉन्सेप्ट्स। नंबर 1 इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैश फ्लोज, जिसके बारे में हम बात करेंगे और उसी के बारे में हम डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे। एंड we are going to talk about the investment options that you can do with the excess of cash. जब आपके पास cash excess पे आ जाए तो how you are going to invest that cash into some profitable opportunities. From an international perspective, cash management is very complex because laws pertaining to the cross-border cash transfer differ among countries. अच्छा, जब डोमेस्टिक लेवल की बात करें तो शायद चीजें बहुत आसान हैं, बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल और अक्रॉस द बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, तो उसमें जो कैश मैनेजमेंट है दैट बिकम्स इवन मोर कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको इससे पहले भी बताया, बिकॉज वाई, क्योंकि लॉज परटेनिंग टू डिफरेंट कंट्रीज which are related to the transfer of cash from one country to another, fund transfer, that is going to be different, right? In addition, एक और वजह, exchange rate fluctuation can affect the value of cross border cash transfer. exchange rate fluctuation की वजह से जो कैश आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर, उसकी वैल्यू सफर हो सकती है। दैट इज बेसिकली द कंसर्न of your organization, concern which is basically you're more related to that particular point. Why? Because उसकी reason ये है कि जो excessive cash है that is very very जो आपके पास excess cash है वो आपका currency loss हो जाएगा whenever you are going to exchange one currency to another, और specifically एक currency को दूसरे currency में convert करने के लिए currency loss आपका हो जाएगा। तो अक्रॉस द बॉर्डर ट्रांजैक्शंस करने के लिए एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस इन्वॉल्व हैं, जिससे आपकी वैल्यू ऑफ कैश सफर हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि हमने अपना कुछ फंड ट्रांसफर करना है इन दी, हमने कुछ इंपोर्ट्स कराई हैं और हमारा एक्सपोर्टर जो है वो कनाडा में बैठा हुआ है, हमने उसको कुछ पेमेंट करनी है, फंड ट्रांसफर करना है इन कैनेडियन डॉलर। लेकिन होता यह है कि हमने 3 महीने के बाद करना था, लेकिन होता यह है कि 3 महीने के बाद कैनेडियन डॉलर जो है वो हमारी करेंसी के अगेंस्ट अप्रिशिएट हो जाता है, तो हमें मोर नंबर ऑफ रुपी देने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर दैट पर्टिकुलर पेमेंट। तो हमारा करेंसी लॉस हो जाएगा, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से करेंसी लॉस हो सकता है, राइट? Financial managers need to understand the advantages and disadvantages of investing cash in foreign markets so that they can make international cash management decision that maximizes the value of the firm. Throughout this text, throughout this international financial management course, I have been talking about the value of the firm या maximization of the value of firm. उसकी reason ये है कि financial managers they need to understand the advantages and disadvantages of investing cash in foreign markets. जब आप foreign markets में investment करने जाते हैं तो what are the advantages and disadvantages for doing those, and so that they can make those international management decision. advantages और disadvantages को सामने रखते हुए if they will make the international cash management decision, that is going to be beneficial and that is going to enhance the value of that particular MNC, right? Okay, let's move on. Cash flow analysis, subsidiary perspective. कैश फ्लो एनालिसिस, सब्सिडरी पर्सपेक्टिव, हम दोनों एस्पेक्ट से पढ़ेंगे, पेरेंट पर्सपेक्टिव से भी और सब्सिडरी पर्सपेक्टिव से भी। द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हैज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द अमाउंट एंड टाइमिंग्स ऑफ द कैश फ्लो। अच्छा, जब भी हम कैश की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का नाम हमारे सामने आता है, एंड द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज वर्किंग कैपिटल बाय डेफिनेशन इज
current assets less current liabilities. This is called basically your net working capital. और जब हम सिर्फ वर्किंग कैपिटल कहते हैं, वर्किंग कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट. Investment in the current asset is called working capital. So the management of working capital has a direct influence on the amount and timings of cash flow. जो वर्किंग कैपिटल है दैट इज द करंट एसेट मैनेजमेंट, उसका डायरेक्ट ताल्लुक होगा किसके ऊपर, ऑन द अमाउंट एंड टाइमिंग्स ऑफ द कैश फ्लो, कि आप उसको किस तरह से मैनेज करना चाह रहे हैं, आप उसका क्या प्रोपोर्शन रखना चाह रहे हैं, कितनी परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट टोटल एसेट्स की वर्किंग कैपिटल में रखना चाहते हैं, और उसकी टाइमिंग्स क्या है. दैट लार्जली डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर मैनेजिंग योर करंट एसेट्स. एंड करंट एसेट कंसिस्ट ऑफ योर कैश, नंबर 1. नंबर 2 इज योर अकाउंट रिसीवेबल एंड नंबर 3 इज योर इन्वेंट्री. ये 3 मेजर चीजें हैं जो आपके करंट एसेट्स का को फॉर्म करती हैं, ये उसके कंपोनेंट्स हैं. और कैश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट लिक्विड, और आपने उसको बहुत एक्सेस में भी नहीं रखना और बहुत कम भी नहीं रखना. दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन मार्क. सब्सिडियरी एक्सपेंसेस. It is difficult to forecast the payments for international purchases of raw material or supplies because of the exchange rate fluctuation, quotas, sales volume, volatility, etc. अच्छा स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो लोकली परहैप्स इट इज़ मच ईजियर टू फोरकास्ट योर एक्सपेंसेस, लेकिन अगर इंटरनेशनली है तो उसके अंदर एडिशनल कुछ कंपोनेंट्स या एडिशनल रिस्क्स आ जाते हैं विच यू कैन नॉट अवॉइड. इट इज़ डिफिकल्ट टू फोरकास्ट द पेमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल परचेजेस बिकॉज परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल और सप्लाईज. क्यों? अगर आपने कहीं अब्रॉड से रॉ मटेरियल या सप्लाईज मंगानी है तो यू आर बेसिकली यू कैन नॉट 100% फोरकास्ट जो उसकी है ना एक्यूरेटली. उसकी रीजन ये है क्योंकि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से रॉ मटेरियल की प्राइसेस और सप्लाईज की प्राइसेस ऊपर नीचे उनमें भी फ्लक्चुएशन आती रहेगी. हो सकता है वो बढ़ जाए या हो सकता है वो कम आ जाए. जैसे अगर हम आपको अपने मुल्क की एग्जांपल दें, जैसे ऑयल है, हम जो अपना पेट्रोल ऑयल की जो प्राइसेस हैं दे फ्लक्चुएट लार्जली बिकॉज वी डू इम्पोर्ट दैम. हम उनको इंपोर्ट करते हैं इसलिए उनकी प्राइसेस बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करती हैं. अगर हमारी अपनी मार्केट में हो या अगर लोकल प्रोडक्ट हो तो शायद उसके अंदर इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए. बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस भी उसके अंदर, एक तो वैसे भी जिसको कहते हैं आलमी मंडी में अगर तेल की प्राइसेस जो है वो हाई हो जाएंगी तो अगेन दैट इज गोइंग टू हैव एन इफेक्ट. बट अगर इसके अलावा भी अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस भी होंगी तो वी हैव टू जो हमारा इम्पोर्ट बिल होगा दैट इज गोइंग टू बी मच हायर अगर उस एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से. तो एंड ऑयल यू नो कि ये कितना बेसिक सा एक कंपोनेंट है या एक कितना बेसिक इंग्रेडिएंट है फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉर रेस्ट ऑफ ऑल द अदर एक्टिविटीज दैट वी आर हैविंग फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अदरवाइज. तो अदरवाइज भी आप देखें तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है. तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से रॉ मटेरियल की प्राइसेस दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड. एंड इवन इसलिए भी ये फोरकास्ट कर सकते हैं बिकॉज यू आर नॉट अवेयर अबाउट द सेल्स वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. हो सकता है पैटर्न्स चेंज हो रहे हो वहाँ पे, हो सकता है कि थिंग्स दे आर चेंजिंग ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट के सेल्स वॉल्यूम की के लिहाज से उसकी वोलेटिलिटी क्या है. सेल्स वॉल्यूम की वोलेटिलिटी है, यानी हो सकता है कि अभी सेल्स जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो ज्यादा हैं और थोड़े अरसे बाद वो कम हो जाएं, वाइस वर्सा, या थोड़े अगर अभी कम है हो सकता है थोड़े अरसे बाद ज्यादा हो जाए, आपकी डिमांड ज्यादा हो जाए. अगेन दिस इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट अक्रॉस द बॉर्डर्स. So subsidiary expenses begin with outflow payments by the subsidiary to purchase raw material or supplies. The subsidiary will normally have a more difficult time forecasting future outflow payments if its purchases are international rather than domestic because of the exchange rate fluctuations. In addition, there is a possibility that payments will be substantially higher due to the appreciation of the invoice currency. जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कैनेडियन डॉलर वाली एग्जांपल मैंने आपको दी थी, अगर फॉरेन करेंसी की अप्रिसिएशन हो जाए तो अगेन जो पेमेंट्स हैं यू आर गोइंग टू पे हायर अमाउंट्स अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर अमाउंट. सो बेसिकली दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स. नाउ द सब्सिडी रेवेन्यू. हमने सब्सिडी
पर्सपेक्टिव के हवाले से वी वर टॉकिंग अबाउट द सब्सिडरी एक्सपेंसेस, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सब्सिडरी रेवेन्यू. Subsidiary revenue is basically going to be generated from the international sales, and international sales may be even more volatile than the domestic sales. Why the international sales are more volatile? आप बताएंगे? Why do we say कि international sales जो हैं they are more volatile as compared to the domestic sales? Yes, very good. Because of the exchange rate fluctuations and the business cycle. International sales are more exposed to the exchange rate fluctuation, though the domestic businesses and domestic sales are, but the international जो आपकी sales हैं they are more exposed to those exchange rate fluctuations, and also the business cycle. Business cycle से मतलब ये कि how does your you know the product life cycle of different products it is varying. कुछ जो है वो इंट्रोडक्शन स्टेज में है, कुछ आपके ग्रोथ स्टेज में है, कुछ मेच्योरिटी स्टेज में है, एंड सम ऑफ देम आर ऑन दी डिक्लाइन स्टेज. बिजनेस साइकिल भी ऐसा ही होता है. सम ऑफ देम कभी ऐसा होता है, दो इनके ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, एक बूम है और एक रिसेशन है. हो सकता है बिजनेस साइकिल आपका बूम पे हो, या हो सकता है बिजनेस साइकिल आपका रिसेशन पे हो. तो आपने इन दोनों ये जो बिजनेस साइकिल है ये भी जब डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो बिजनेस साइकिल्स हैं उनकी डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, एंड इवन इट वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. कुछ इंडस्ट्री का जो बिजनेस साइकिल है वो बूम पे होगा इस वक्त और कुछ का रिसेशन में होगा. जैसे अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की एग्जांपल ले लें तो एक जमाना था कि ये सेक्टर बड़ा ही बूम में था, तो उसका जो बिजनेस साइकिल है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का दैट वाज इन बूम इन 2005 से लेके 7, 8, 9 तक. अब वो एक मेच्योरिटी के स्टेज के ऊपर आ गया जहाँ पे थ्रोट कट कॉम्पिटिशंस हैं, वेयर बाय ऑल दी सेलुलर कंपनीज दे आर launching all those marketing strategies and they are launching promotional strategies in order to maintain their market shares. तो boom and recession is the business cycle. business cycle भी different हो सकते हैं even country wise भी. अब देखें हमारे मुल्क में अगर आप देखें आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का क्या पैटर्न है, उससे डिटरमिन होता है कि आपके कंट्री के अंदर बिजनेस साइकिल कैसा है, क्या वो बूम में है या क्या वो रिसेशन में है, बूम में है या रिसेशन, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं इन्वेस्टमेंट के आपके कंट्री में. दैट इज गोइंग टू डिटरमिन फॉर द बूम एंड फॉर द रिसेशन पीरियड्स, राइट. देन इज सब्सिडरी डिविडेंड पेमेंट्स. Subsidiary dividend payments. If the payments and fee for the parent are known and denominated in the subsidiary's currency, forecasting cash flows will be easier. अब फी वगैरह में जैसे रॉयल्टी है, if you are having a joint venture with that of your parent and overhead charges, रॉयल्टीज आप पे करते हो जब आपका लाइसेंसिंग या फ्रेंचाइजिंग अरेंजमेंट है, राइट, and certain overhead charges. अगर तो वो for the if these payments are known for the parent and denominated in the subsidiary's currency, अगर तो वो सब्सिडरी की करेंसी में होगा तो then it is easy to forecast. लेकिन अगर वो पेरेंट की करेंसी में होगा तो again there is going to be a difference and it is not easy to forecast because of the exchange rate fluctuation between the subsidiary and the parent. ठीक हो गया. अच्छा जी, एक छोटा सा पैरा आप लोगों के लिए पढ़ के सुनाऊंगी यहाँ से. An example is research and development costs incurred by the parent, which improves the quality of goods produced by the subsidiary. Whatever the reason, payment by the subsidiary to the parent are often necessary. कोई भी रीजन हो लेकिन पेमेंट तो करनी है. पेमेंट बाय द सब्सिडरी टू द पेरेंट आर ऑफन नेसेसरी. व्हेन डिविडेंड पेमेंट्स एंड फी आर नोन इन एडवांस and denominated in the subsidiary's currency, forecasting cash flows is much easier for the subsidiary. The level of dividends paid by the subsidiary to the parent is dependent on the liquidity needs of each subsidiary, right? Potential uses of funds at various subsidiary location and expected movements in the currencies of subsidiaries and regulations of the host country government. तो regulations जो है वो host country government की वो भी बहुत ज़्यादा important है. ठीक हो गया. Okay, moving on. Now, subsidiary liquidity management. Subsidiary liquidity management. What is meant by liquidity? Liquidity is how quickly you can change your assets into your into cash. How quickly you can change your
current assets into cash, that is going to be determined as your liquidity. So liquidity management बहुत important है subsidiary की, because you want to be liquid, you want to meet your expenses, you want to meet your running and your operating expenses. For that particular matter, you need to have the liquidity management for yourself. So subsidiaries liquidity management is very, very important. After accounting for all cash outflows and inflows, the subsidiary must either invest its excess cash or borrow to cover its cash deficiencies. अच्छा, जब हम सारी अपनी अकाउंटिंग कर लेंगे फॉर ऑल कैश आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज, द सब्सिडरी मस्ट आइदर इन्वेस्ट इन एक्सेस कैश और बोरो टू कवर इट्स कैश डेफिशिएंसी. या तो आपके पास कैश सरप्लस आ जाएगा या फिर आपके पास कैश की डेफिशिएंसी आ जाएगी. वट एवर द केस इज, यू आर गोइंग टू कवर इट. जो भी केस होगा आप उसको कवर करने जाएंगे विद द हेल्प ऑफ आइदर बोरोइंग अगर कैश डेफिशिएंट है, और अगर आपकी कैश एक्सेस में है तो यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट दैट. लेकिन अपने पास आपने फालतू का या बेकार का या आइडल कैश नहीं रखना. उसकी रीजन ये है कि कीपिंग द आइडल कैश इज जस्ट अ वेस्टेज. बजाय इसके कि आप उसको रखें, इट इज ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्ट दैट. एंड आई एम श्योर यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, विच सेज के बजाय इसके कि आप उसको पैसे को ऐसे ही रखें, उससे बहुत अच्छा है कि आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर दें. द एग्जाम्पल विच आई कैन कोट इज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 मिलियन रुपी है. अब उन 1 मिलियन रुपी को यू हैव द अपॉर्चुनिटी, आप चाहे उसको बैंक में डाल दें, चाहे आप उससे गोल्ड परचेज कर लें, चाहे आप उससे कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लें, और एक ऑप्शन ये है कि आप उसको उस कैश को एक बॉक्स में रखें और फिर अपने घर में किसी जगह पे सेफ जगह के ऊपर आप उसको संभाल के रख दें. अब इन चारों चीजों में से क्या बेहतर है? डेफिनेटली जिसके ऊपर आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, जिसके ऊपर आपको अगर 1 मिलियन से वो 1.2 मिलियन हो जाते हैं तो आपको बुरे नहीं लगेंगे. समझ में आ रहा ना? सो इट इज ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्ट योर मनी रादर देन कीपिंग इट और कीपिंग इट सेफ. एक्सेस कैश को अपने पास रखने का फायदा नहीं है, और वो 1 मिलियन रुपये अगर आपकी अलमारी में 2 साल तक पड़े रहेंगे तो वो 1 मिलियन ही रहेंगे. आई बेट यू वो 1 मिलियन ही रहेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं. उसकी रीजन ये है, यस चोरी हो सकते हैं लेकिन वो इंक्रीज नहीं होंगे. उसकी रीजन ये है क्योंकि उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी. लाइक 1 मिलियन की वैल्यू 2 साल के बाद वो नहीं रहेगी जो कि आज है. मैं समझ रहे हैं ना? बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इन्वॉल्व. इज दैट क्लियर? आपने अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा, लोग कहते हैं कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि अब पैसे की तो कोई कीमत ही नहीं रही. उसका क्या मतलब है कि पहले वो हमें बताते हैं अपनी स्टोरीज, कहते हैं कि 100 रुपीज में हम इतना कुछ परचेज कर लेते थे, 1 रुपी की ये वैल्यू होती थी. इसका मतलब यह है कि ओवरऑल भी ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्फ्लेशन की वजह से भी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज हो जाती है. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने अमाउंट को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दें. हम बात कर रहे थे लिक्विडिटी की और मैं आपसे बात कर रही थी एक्सेस कैश की. कमिंग बैक टू द ग्राउंड, एक्सेस कैश को इन्वेस्ट कर दें, और अगर कम है, अगर डेफिशिएंट है, इफ यू आर कैश डेफिशिएंट, सो जस्ट बोरो इट, आप उसको और बोरो कर लें. If the subsidiary has access to lines of credit and overdraft facility, it may maintain adequate liquidity without substantial cash balances. अगर subsidiary के पास access है to the lines of credit and the overdraft facility. Lines of credit is basically a facility which your bank offers you in order to draw cash. ये एक तरह की लोनिंग फैसिलिटी है जो कि आपका बैंक, कोरेस्पोंडेंट बैंक जिसके साथ आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो आपको प्रोवाइड करता है. उसमें होता ही है कि अगर आपके पास लाइन ऑफ क्रेडिट है, आपके बैंक ने आपको लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर की हुई है, तो लेट्स से उसने आपको ओवर 5 मिलियन तक लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर की हुई है. जो लाइन ऑफ क्रेडिट है दैट इज जस्ट लाइक अ लोन. आपके बिजनेस अकाउंट के अंदर 5 मिलियन बैंक ट्रांसफर कर देगा एंड यू कैन ड्रॉ एनी अमाउंट फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, जितने भी टाइम पीरियड के लिए उन्होंने वो आपको लाइन प्रोवाइड की हुई है, ऑन अ स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट. And that interest rate is usually lower as compared to the nominal interest rate which the bank is charging from rest of the other customer. यानी बैंक ने आपको एक तरह की फैसिलिटी, एक तरह का एडवांटेज या एक तरह की एडिशनल फैसिलिटी और या आपको एक वो दिया हुआ है, ऑप्शन दी हुई है कि यस यू कैन हैव दिस लोनिंग फैसिलिटी कंपैरेटिवली कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर. तो लाइन ऑफ क्रेडिट आपको मिल सकता है एट अ कंपैरेटिवली लोअर इंटरेस्ट रेट. दूसरी सूरत ये हो सकती है कि यू हैव द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज का मतलब ये है
कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, बट सिंस यू आर द रिनोन्ड कस्टमर you can still make the transactions, you can still make the payments of a substantial amount. ये भी फैसिलिटी सिर्फ उन कस्टमर्स के लिए होती है, उन बिजनेस अकाउंट्स के लिए होती है जो कि बहुत ज़्यादा रिप्यूटेड हैं और उन जो जिनका बैंक के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है और बैंक को वो कंपनसेशन फी भी पे करते हैं ऑफ एंड ऑन। तो स्टूडेंट्स, जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, ओवरड्राफ्ट जैसे कि नाम से जाहिर है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है बट स्टिल यू कैन मेक द ट्रांजैक्शंस, बैंक अपने बिहाफ पे आपके लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। सो द लाइंस ऑफ क्रेडिट एंड द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, इफ द सब्सिडरी हैज द एक्सेस टू द लाइंस ऑफ क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इट मे मेंटेन एडिक्वेट लिक्विडिटी विदाउट सब्सटेंशियल कैश बैलेंसेस। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्सेसिव कैश बैलेंसेस हो, अगर ये फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है तो देन इट इज इक्वली गुड। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो दैट इज इक्वली गुड, आप बेशक कैश रखें या ना रखें, इट मीन्स दैट यू हैव अ कैश। आपके पास एटीएम कार्ड है, इसका मतलब है यू हैव कैश ऑन हैंड, बेशक आपके पास फिजिकली कैश अवेलेबल हो या ना हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। बिफोर मूविंग टू द सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट के बारे में एक छोटा सा पैरा। Liquidity management is crucial component of the subsidiaries working capital management. Subsidiaries commonly have access to the numerous lines of credit and overdraft facilities in various currencies. अच्छा, ये जो मैंने आपको lines of credit और overdraft facilities दी हैं, बताई हैं, ये different currencies में आपके लिए available हैं. Therefore, they may maintain adequate liquidity without substantial cash balances. While liquidity is important for overall MNC, it cannot be properly measured by the liquidity ratios. अच्छा, जैसे हम यूजुअल बिजनेस में करते थे कि हम अपनी लिक्विडिटी को चेक करने के लिए वी यूज टू कंप्यूट डिफरेंट रेशोज। जब हम डोमेस्टिक बिजनेस की बात करते थे, लिक्विडिटी रेशो मींस के करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, जिसको हमने करंट रेशो कहा। देन वी हैड द क्विक रेशो एटसेट्रा, वी हैड सो मेनी रेशोज फॉर द लिक्विडिटी कैलकुलेशंस। लेकिन हम एमएनसी की जब बात करते हैं तो उसकी लिक्विडिटी रेशोज की मदद से हमें नहीं पता चलता कि ये इसकी लिक्विडिटी क्या है। उसकी रीजन ये है क्योंकि हम ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज हैं या ये जो आपकी लाइंस ऑफ क्रेडिट्स हैं, इसको भी हम एज अ लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट समझते हैं। इसलिए लिक्विडिटी रेशोज फॉर द एमएनसीज देन कैन नॉट बी द ट्रू प्रेडिक्टर्स ऑफ हाउ मच लिक्विड एन एमएनसी इज। तो आप उसको लिक्विडिटी को कैलकुलेट करने से अंदाजा नहीं लगा सकते। नाउ वी कम टू द सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट, जैसा कि नाम से जाहिर है कि कैश मैनेजमेंट को हमने सेंट्रलाइज कर दिया। कैसे? व्हाइल ईच सब्सिडरी इज मैनेजिंग इट्स ओन वर्किंग कैपिटल, a centralized cash management group is needed to monitor and possibly manage the parent subsidiary and inter-subsidiary cash flow. अच्छा, वैसे तो अगर एक एमएनसी के 4-5 सब्सिडरी हैं तो हर कोई अपने अपने जगह के ऊपर सब्सिडरी ए बी सी डी हर कोई अपनी अपनी जगह पे कैश मैनेजमेंट कर रहा होगा, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस सारे को सेंट्रलाइज करें, एक जगह पे जमा करें एंड देन वी लुक एट के हाउ मच कैश इज नीडेड और हमें कैश जरूरत है एंड हाउ मच वी आर डेफिशिएंट। फॉर एग्जांपल, दिस इज पेरेंट, this is parent, this is subsidiary A, this is subsidiary B, this is subsidiary C and this is subsidiary D. अब ये हमारे पास 4 सब्सिडरीज हैं इस पेरेंट की। all of these subsidiaries, subsidiary A है, subsidiary B है, subsidiary C and subsidiary D, they are managing their cash flows at their own places, their working capital management and their cash management. लेकिन अब इन सब का जो नेट इफेक्ट आने जा रहा है वो इस पेरेंट की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आने जा रहा है या उसकी पोजीशन के ऊपर, इस जो ये एमएनसी है उसकी होल सम पोजीशन के ऊपर। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि इन सभी सब्सिडीज का कोई इंटरेक्शन हो विद दिस पेरेंट और यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम हो जिसके थ्रू पता चल सके कि एमएनसी को इन दी होल सम क्या चीज, कितना कैश डेफिशिएंट है और कितना कैश एक्सेस है, ताकि हम उससे बेहतर इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। सो द सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट ग्रुप इज नीडेड टू मॉनिटर
and possibly manage the parent subsidiary and inter subsidiary cash flows. The Treasury Department of Kraft Foods is centralized to manage liquidity, funding and foreign exchange requirement of its global operation. This is an example. And Monsanto has a centralized system for pooling different currency balances from various subsidiaries in Asia that saves hundreds of thousands of dollars per year. एक आपने एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बना दिया पूलिंग के लिए. पूलिंग का मतलब यह है कि जो डिफरेंट सब्सिडीज हैं उन सभी का कैश एक जगह के ऊपर इकट्ठा हो गया, एक सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम हो गया, जहां से आप फिर जो आपका एक्सेस कैश आ जाएगा दैट कैन बी इन्वेस्टेड इन सम इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी, और अगर कैश कम है किसी एक सब्सिडरी का तो इट कैन बी बैलेंस्ड ऑफ बाय सम अदर सब्सिडरी. इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट कैन बी सेगमेंटेड इनटू टू फंक्शंस. इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट के दो फंक्शंस हैं. नंबर 1 ऑप्टिमाइजिंग कैश फ्लो मूवमेंट्स and number 2 is investing excess cash. Number 1 is optimizing cash flow movements, number 2 investing excess cash. This is the cash flows of an MNC. यहाँ देखिएगा आप कि how does this work. The cash flow of an of overall MNC कैसा होगा. This is a parent. Sources of debt. In sources of debt, say parent is taking the loans, parent is taking a loan at some specified interest rate, and then the parent is giving the repayment of these loans in the form of cash to that source of debt. It can be some financial institution or a bank, etc. स्टॉक होल्डर्स, ये आपको सारी मैं कैश ट्रांजेक्शन्स बता रही हूँ कि कैश में हम किस तरह से डील कर रहे हैं. सोर्सेज ऑफ डेट के साथ लोन्स पेरेंट के पास आएंगे, लोन की वापसी कैश की पेमेंट में रीपेमेंट होगी टू द सोर्सेज ऑफ डेट. स्टॉक होल्डर्स न्यू इशू करेंगे पेरेंट को, राइट, एंड पेरेंट इज गोइंग टू गिव बैक द कैश डिविडेंड टू द स्टॉक होल्डर. ठीक है ना. जो जब न्यू इश्यूज किए हैं तो पेरेंट को पैसा आएगा, कैश आ जाएगा और शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स आ जाएंगे. जब कैश डिविडेंड करेंगे तो कैश पेमेंट इज गोइंग टू बी out to the stockholder. So this is the cash inflow to the parent and this is the outflow, that is the cash dividend. अच्छा जी, जब हम सब्सिडरी का देखते हैं, सब्सिडरी में जो आपकी सब्सिडरी इज गोइंग टू पे द एक्सेस कैश और इट इज गोइंग टू सबमिट द एक्सेस कैश टू द पेरेंट. सब्सिडरी के पास जो भी एक्सेस कैश होगा वो पेरेंट के पास चला जाएगा, प्रोवाइडेड के ब्लॉक्ड फंड्स की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है या उस तरह का कोई सीन नहीं है. जब भी एक्सेस कैश होगा दैट इज गोइंग टू बी रेमिटेड बैक टू द पेरेंट. फी एंड अर्निंग सब्सिडी ने जो पे करनी है इन द फॉर्म ऑफ अ रॉयल्टी और कमीशंस या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, रॉयल्टीज एंड एडमिन चार्जेस, दे आर गोइंग टू बी एडमिन चार्जेस, दे आर गोइंग टू बी पेड टू द पेरेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश. पेरेंट जो है वो कई बार लोन एंड इन्वेस्टमेंट्स दे रहा है टू द सब्सिडरी, स्पेसिफिकली व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट, द होस्ट कंट्री एंड द होम कंट्री इंटरेस्ट रेट. यहाँ पे शायद लोनिंग फैसिलिटी कंपैरेटिवली लो इंटरेस्ट रेट पे मिल रही है, तो पेरेंट इज प्रोवाइडिंग द लोन और इन्वेस्टमेंट टू द सब्सिडरी एंड पेरेंट माइट बी गिविंग द इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल टू द सब्सिडरी अगर आपने उसको कोई लोनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है. देन सिमिलरली यही वो 3-4 चीजें हैं जो कि ये दूसरी सब्सिडरीज में, दिस इज सब्सिडरी ए एंड दिस इज सब्सिडरी बी, और सब्सिडरी ए बिल्कुल उसी पैटर्न से एक्सेस कैश दे रही है, फी एंड अर्निंग्स दे रही है, पेरेंट जो है वो लोन और इन्वेस्टमेंट दे रहा है और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल भी दे रहा है टू दी सब्सिडरी. इन दोनों सब्सिडरीज के दरमियान में फंड्स फॉर दी सप्लाईज दे आर गोइंग टू इंटरचेंज. सब्सिडरी ए इज गिविंग द फंड्स फॉर सप्लाईज टू दी सब्सिडरी बी एंड सब्सिडरी बी माइट बी गिविंग द फंड्स फॉर सप्लाईज टू दी सब्सिडरी ए. जो हमने इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़े थे इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस में, जहां पे हम काउंटर ट्रेड की बात कर रहे थे, तो वो भी इन सब्सिडरीज के दरमियान में एग्जिस्ट कर सकती है. इवन द बार्टर सिस्टम दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन दी टू सब्सिडरीज.
नाउ दी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एंड दी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज. अब शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज क्या है कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर गोइंग टू बी सोल्ड टू दी पेरेंट एंड द पेरेंट इज गोइंग टू परचेज दी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज. ठीक है ना. Sale or purchase of short-term securities, similarly long-term investments and return on long-term investment. Parent can be doing some long-term investment in the long-term projects and they might be receiving the return on investment. These are all the cash flows patterns of an overall MNC. जहाँ जहाँ से आपको कैश जनरेट हो रहा है, कैश कहाँ से आ रहा है और कैश कहाँ पे जा रहा है. And we can see number of opportunities. Number 1 is short-term. Number 2 is long-term projects. Number 3 is debt and number 4 is stockholders. These are the cash flow patterns. जाहिर है कैश आएगा तो उसके बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा. अगर डेट ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसके बदले में इंटरेस्ट पेमेंट देनी पड़ेगी. अगर स्टॉक्स इशू किए हैं तो डेफिनेटली डिविडेंड्स देने पड़ेंगे. लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, फिर रिटर्न्स मिलेंगे. सिमिलरली शॉर्ट टर्म के लिए भी आप उसको परचेज करोगे तो देन अगर आप उसको सेल करोगे तो इवेंचुअली यू आर गोइंग टू हैव द कैश इनफ्लोज. सब्सिडरी से यू कैन हैव द इंटरेस्ट और लोन्स और प्रिंसिपल्स और लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स फी एंड अर्निंग के लिहाज से और एक्सेस कैश के लिहाज से. दीज आर द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज पैटर्न from the subsidiaries, different subsidiaries. So this is the typical cash flows of an MNC. इसके अलावा भी और बहुत कुछ हो सकता है, but that is the generalized figure or a form whereby the cash inflows are being taking place. Cash inflows and cash outflows are being taking place. ठीक है. Now managing for value. Flexsys is a large chemical company. Basically Flex system decision to use a multi bank payment system. हम देखेंगे कि ये एक एग्जांपल है एक बड़ी केमिकल कंपनी की, MNC की, जो कि मल्टी बैंक पेमेंट सिस्टम यूज कर रहा है. हम देखते हैं कि उसको क्या एडवांटेज मिलता है. फ्लेक्स सिस्टम इज अ लार्ज केमिकल कंपनी विद मोर देन 20 सब्सिडरीज इन यूरोप. 20 सब्सिडरीज हैं यूरोप में, US एंड एशिया में. US, एशिया में और यूरोप में 20 सब्सिडीज हैं. To improve its liquidity, it wanted to create a system that would enable its treasury department to continuously monitor all payments at each subsidiary. अपनी liquidity को improve करने के लिए they wanted to have a system जिसके अंदर उनका जो डिपार्टमेंट है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, that could continuously monitor all payments at each subsidiary. They wanted to have such a kind of a system जिसके अंदर जो कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज के जितने भी पैटर्न्स हैं वो उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर सकें. Since the inception of the euro, Flexsys has had euro balances at several subsidiaries. जब यूरो डॉलर आया तो जाहिर है कि जो जितनी भी यूरोपियन सब्सिडीज थी उसके साथ जो करेंसी जो कैश लिंक था दैट वाज ऑल इन यूरो करेंसी and they have the euro balances at several subsidiaries and consolidates these balances so that it can maximize the interest earned on the balances. वो चाह रहे थे कि हम इन सारे जितने भी यूरो करेंसी है हम इसको इकट्ठा रखें एक जगह पे ताकि हम उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट अर्न हो सकता है वो हम जनरेट कर सकें. It uses technology that allows all payments due to be recorded and transmitted to the treasury department. The treasury net all payments due between subsidiaries so that only net payments need to be made to cover the payment due between subsidiaries. अच्छा, जो नेट पेमेंट का मतलब है कि दो सब्सिडीज के दरमियान में डिफरेंस कितना आ रहा है, सिर्फ डिफरेंस को पे कर दें. ऐसा नहीं कि पूरी अमाउंट आप एक जगह से दूसरी ट्रांसफर करें, सिर्फ जो नेट डिफरेंस है उसको पे कर दें. जैसे सब्सिडरी ए और सब्सिडरी बी ने कोई आपस में कोई सप्लाईज ट्रांसफर किए हैं एक दूसरे के साथ, अब उसकी जो नेट पेमेंट बनती है, फॉर एग्जांपल इन्होंने 1.5 मिलियन की 1.8 के साथ की है. अब 1.5 और 1.8 के दरमियान में जो डिफरेंस है दैट इज 0.3 मिलियन. 0.3 मिलियन इज बेसिकली द नेट पेमेंट जो कि जिसके भी हिस्से में जानी है सब्सिडी के आप उसको वापस कर दें, बजाय इसके कि पूरी ट्रांजैक्शंस को आप करें, सिर्फ जो नेट डिफरेंस है आप उसको पे कर दें. Flexsys system is especially effective because it is transparent, meaning that the payments due at each subsidiary can easily be monitored
by the subsidiary. Flex system जो है that is specially effective क्योंकि this is quite transparent. इसका मतलब यह है कि payments due at each subsidiary can be easily monitored by the subsidiaries. क्योंकि ट्रांसपेरेंट होने से मतलब यह है कि एक सब्सिडरी दूसरी सब्सिडरी के फंक्शंस को, ऑपरेशंस को बड़े आराम से मॉनिटर कर सकती है, ऑब्जर्व कर सकती है. Flexsys uses multiple banks rather than branches of a single bank so that each subsidiary can use the bank it prefers. अच्छा, इन्होंने एक और इंटरेस्टिंग चीज रखी हुई है कि दे आर यूजिंग मल्टीपल बैंक्स, नॉट अ बैंक, एक सिंगल बैंक और उसकी डिफरेंट ब्रांचेस नहीं, बल्कि जो बैंक वो प्रेफर करते हैं, बैंक ए बी सी डी, ये नहीं कि बैंक एक ही बैंक है लेकिन उसकी डिफरेंट ब्रांचेस को वो प्रेफर करेंगे उस कंट्री में, बल्कि डिफरेंट मल्टीपल बैंक्स. मल्टीपल बैंक्स का मतलब है डिफरेंट बैंक्स. Having a multi-bank system complicates the reporting of payment, but allows each subsidiary to choose the bank that provides it with the best service. Thus, Flexsys' decision to use a multi-bank system can ensure optimal service at its subsidiaries. At the same time, however, its centralized payment network ensures that cash utilized properly so that it can maximize its value. Centralized system का बहुत फायदा है. एक जगह पे अगर पैसे आपके या कैश आपकी इकट्ठी है तो then you can make certain decisions relevant to your investment. अगर डिफरेंट जगहों पे scattered है तो उसकी वो वैल्यू नहीं होगी. अगर एक जगह पे वो इकट्ठे हैं तो then you can put it in some better investment opportunity. जैसे मैं यहाँ पे आपको एक बात और कोट करना चाहूंगी, अगर सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम हो तो उसमें आपके पास एक्सेस कैश एक जगह पे होगी. आपका कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के ऊपर मॉनिटरिंग के हिसाब से ज्यादा अच्छा बेहतर कंट्रोल होगा एज कम्पेयर टू अगर आपकी कैश जो है वो डिस्पर्स्ड है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, और इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. सब्सिडरी ए बी सी डी में मुश्किल हो जाएगा. लेकिन अगर एक जगह के ऊपर होगा तो कैश इनफ्लो कहाँ से आ रहा है और कैश आउटफ्लो कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे नेट पेमेंट करनी है, कहाँ से नेट रिसीट्स आनी है, कहाँ जब एक्सेस कैश आता है. तो जब बड़ी अमाउंट्स होती हैं, टू टेल यू वन थिंग मोर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो हैं, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसमें आप अपना कैश इन्वेस्ट कर दें जो आपका एक्सेस कैश है, एंड दे कैन बी लिक्विडेटेड एट एनी टाइम. और मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं वो ब्लॉक्स की फॉर्म में मिलती हैं बड़ी बड़ी. अगर सेंट्रलाइज्ड होगा, एक जगह पे होगा, तो यू कैन पुट ऑल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट ऑफ द मार्केटेबल सिक्योरिटीज इनटू दैट. लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, जगह जगह पे स्कैटर्ड इन्वेस्टमेंट्स होंगी, तो देन यू कैन नॉट अवेल सच काइंड ऑफ अट्रैक्टिव investment opportunities. So basically that is the crux. So the centralized cash management division of an MNC cannot always accurately forecast the event that affect parent, subsidiary or inter-subsidiary cash flow. अच्छा, यहाँ पे एक मुश्किल ये है कि जो सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट डिवीजन है, अभी मैंने बड़ी तारीफें आपके सामने की और साथ ही मैं उसके आपको कुछ डिसएडवांटेजेस बताने वाली हूँ. उसकी रीजन ये है कि पेरेंट जो है वो इतना अच्छा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, फोरकास्ट नहीं कर सकता कि सब्सिडी की क्या नीड्स हैं या सब्सिडी के कैश फ्लोज के जो पैटर्न्स हैं या जो उन वहाँ पे इवेंट्स जो कि उसको इफेक्ट कर सकते हैं वो किस हद तक उन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करेंगे. इसलिए कई दफ़ा ये मुश्किल भी होता है. It should, however, be ready to react to the events by considering. अब ये हो सकता है, अब ये नहीं कि वो उसको सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम को खत्म कर दें या उसको कंसिडर ना करें, उसके लिए फिर सोल्यूशंस ढूंढने, ऑप्शंस ढूंढने. वो ये है कि एनी पोटेंशियल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द कैश फ्लो एंड हाउ टू अवॉइड सच एडवर्स इम्पैक्ट्स. आप ये देखें, उन चीजों को फोरकास्ट करें जिससे, उन इवेंट्स को फोरकास्ट करें जिससे आपकी कैश मैनेजमेंट जो है वो सब्सिडरी की दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, और फिर उनकी रेमेडीज ढूंढें और उनके तरीके ढूंढें कि हाउ दीज फ्लक्चुएशंस या हाउ दीज इवेंट्स की जो मैनेजमेंट है वो आपने कैसे करनी है. लाइक उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको आप किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं. नाउ वी कम टू द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अबाउट द टेक्निक्स टू ऑप्टिमाइज कैश फ्लोज. टेक्निक्स टू ऑप्टिमाइज कैश फ्लोज जिसके बारे में हम बात की. Number one is accelerating cash flows. Accelerating cash inflows. The more quickly the cash inflows are received, the more quickly they can be invested or used for other purpose. अच्छा स्टूडेंट्स, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. जितनी जल्दी आपके कैश इनफ्लोज आ जाएंगे, the more quickly you receive it, the more quickly they can be invested or used for other purposes. क्या मतलब है, जितना जल्दी आपको कैश रिसीव हो जाएगा उतना ही जल्दी आप उसको किसी इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी के अंदर
लगा सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आप वेट करते रहेंगे, आपने वो रेवेन्यू तो अर्न कर लिया हुआ है बट यू हैवंट रिसीव्ड इट। जब तक आप उसको रिसीव नहीं करेंगे यू कैन नॉट इन्वेस्ट इट इन सम इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी। तो जितना जल्दी कैश रिसीव हो जाए उतना ही बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताती चलूँ स्टूडेंट्स कि एक्सेलरेटिंग कैश फ्लोज के हवाले से जो आजकल जब हम ई बिजनेस की बात करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं, तो दैट हैज बिकम वेरी वेरी स्पीडी। एक जस्ट अ क्लिक ऑफ माउस और एटीएम ट्रांजेक्शन्स के थ्रू यू कैन इमीडिएटली ट्रांसफर फंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इससे पहले ये होता था कि मेल फ्लोट्स क्रिएट हो जाते थे, और उस फ्लोटिंग सिस्टम को अवॉइड करने के लिए वी यूज टू हैव द लॉक बॉक्स सिस्टम, जिससे आई थिंक यू आर प्रिटी अवेयर ऑफ। लॉक बॉक्सेस से भी मतलब यही होता था कि एक सेंट्रलाइज्ड बॉक्स आपने जनरेट कर लिया जिसके अंदर जितने भी आपके बैंक्स हैं दे आर गोइंग टू ट्रांसफर दैट मनी इनटू वन पर्टिकुलर प्लेस। जो भी पेमेंट्स एंड रिसीट्स आनी है वो लॉक बॉक्स में ही आएंगी, ठीक है ना। तो वो बाय द एंड ऑफ द डे उस लॉक बॉक्स की सारी काउंटिंग हो जाती है कि कितनी रिसीट्स और कितनी पेमेंट्स हैं। बट दैट वाज द काइंड ऑफ अ यू कैन से ट्रेडिशनल मेथड, या ये पुराना मेथड था। अब तो इतना टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांस कर लिया कि यू डू नॉट नीड टू हैव सच काइंड ऑफ लॉक बॉक्सेस। एक्सेलरेटिंग कैश इनफ्लोज से मतलब ये है कि आप अपनी जो कैश इनफ्लोज जहां जहां से जनरेट होनी है आप उसको एक्सेलरेट करें। एक्सेलरेट से मतलब यह है कि उसको तेजी से, उसके प्रोसेस को आसान करें और उसको तेजी से रिसीव करने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप रिसीव कर लेंगे उस अमाउंट को उतना ही जल्दी आप उसको इन्वेस्ट कर सकेंगे। समझ आ रहा है ना। आपके कस्टमर के ऊपर आपके पैसे ड्यू हैं, ट्राई टू एक्सेलरेट द कैश इनफ्लोज प्रोसेस। जितना जल्दी आप कर लेंगे उतना ही जल्दी आपके लिए बेनिफिशियल है दैट यू मे इन्वेस्ट दैट इनटू योर in some other investable opportunity. Common methods include the establishment of lock boxes around the world to reduce the mail float and pre-authorized payment, charging a customer's bank account directly. अच्छा, इसमें कुछ तरीके हैं जिससे आप डायरेक्टली कर सकते हैं, कुछ मैं आपको लाइव एग्जांपल्स भी दूंगी। एक तो हो गया आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉक बॉक्सेस अराउंड द वर्ल्ड। लॉक बॉक्सेस से मतलब यह कि जितनी भी रिसीट्स आनी है और जितनी भी पेमेंट्स आनी है वो उन लॉक बॉक्सेस में जमा होंगी, और वो लॉक बॉक्स जो है वो आपको ऑटोमेटिकली दैट इज गोइंग टू गिव यू एन आइडिया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बना लें। आपकी एमएनसी है, आपकी सब्सिडीज हैं, उनके हिसाब से आप लॉक बॉक्सेस बना लें ताकि आपकी सारी जो पेमेंट्स हैं वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाएं और यू कैन यूटिलाइज दोज पेमेंट्स फॉर सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा प्री ऑथराइज्ड पेमेंट्स। प्री ऑथराइज्ड पेमेंट्स का मतलब है चार्जिंग अ कस्टमर बैंक अकाउंट डायरेक्टली। आप अपने कस्टमर का बैंक अकाउंट डायरेक्टली चार्ज कर लें। प्री ऑथराइज्ड डेबिट्स आप देते हैं टू सर्टेन थिंग्स, जैसे मैं आपको ऑटो लोन्स की एग्जांपल देती हूँ। सर्टेन बैंक्स ये फैसिलिटी देते हैं प्री ऑथराइज्ड डेबिट की अपने कस्टमर को। कस्टमर के अकाउंट से ऑटोमेटिकली इंस्टॉलमेंट डिडक्ट हो जाएगी फॉर द व्हीकल, एंड द कस्टमर दे डू नॉट हैव टू फिजिकली गो फॉर द पेमेंट, उसके कैश लेके या चेक के थ्रू या वट एवर। प्री ऑथराइज्ड का मतलब है कि आपने बैंक को इजाजत दे दी कि यस यू कैन डिडक्ट दिस अमाउंट बाय दिस ड्यू डेट। अमाउंट भी बता दी, ड्यू डेट भी बता दी और बैंक भी बता दिया, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली वहां से डिडक्ट हो जाती है। सो बेसिकली दिस इज द चार्जिंग द कस्टमर्स बैंक अकाउंट डायरेक्टली प्री ऑथराइज्ड डेबिट, जिससे टाइम भी सेव होता है और आपके जो कैश इनफ्लोज की एक्सेलरेशन हो जाती है। लाइक कैश इनफ्लोज तेजी से आपके पास आ जाएंगे और साथ में जो आपके बैंक अकाउंट आपका डायरेक्टली आपका हो जाएगा। Number 2 is minimizing currency conversion cost. Minimizing currency conversion cost. Netting reduces administrative and transaction cost through the accounting of all transactions that occur over a period to determine one net payment. One net payment calculate कर लें and it is going to reduce the administrative and transaction costs through the accounting of all transactions that may occur over a period of time. So this is minimizing currency conversion costs. A bilateral netting system involves transaction between two units, while a multilateral netting system usually involves more complex interchanges. जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, bi means two. Bilateral netting system involves transaction between the two units, while a multilateral netting system usually involves more complex interchanges. So basically these are the netting system. एक example netting system के हवाले से
Montana Incorporation has subsidiaries located in France and in Hungary. Whenever the French subsidiary needs to purchase supplies from the Hungarian subsidiary, it needs to convert euros into Hungary currency, that is foreign. Hungary की currency का नाम है foreign to make payment. Hungary subsidiary must convert its foreign into euro when purchasing supplies from the French subsidiary. यानी देखिए दो subsidiaries हैं, एक French है एक Hungary है. French को Hungary की currency में convert करना पड़ता है और हंगरी को फ्रेंच की करेंसी फ्रांस की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना. अब क्या होगा, Montana has instructed both the subsidiaries to net their transactions on a monthly basis so that only one net payment is made by the end of each month. यानी जो नेट पेमेंट का मतलब है जो इन दोनों करेंसीज के दरम्यान में डिफरेंस है, इसने उससे सप्लाईज लेनी है और उसने इससे सप्लाईज लेनी है, उन दोनों का बैलेंस आउट करके जो चीज देखिए उसने भी उसको 1 मिलियन देने हैं और इसने भी उसको 1 मिलियन देने हैं. 1 मिलियन जो फ्रांस करेंसी के उसने उसको फ्रेंच उसने उसको देने हैं और हंगरी ने भी 1 मिलियन उनको देने हैं. उन दोनों के दरमियान में जो करेंसी का डिफरेंस है सिर्फ उस नेट पेमेंट जो है वो आप ट्रांसफर कर दें तो ऑल इज डन, बजाय इसके कि आप पूरी करेंसी को पहले कन्वर्ट करें. दैट इज गोइंग टू अवॉइड द कन्वर्जन कॉस्ट. मेरी बात समझ रहे हैं ना, बजाय इसके पूरे 1 मिलियन को कन्वर्ट करें उसके ऊपर करेंसी लॉस उठाएं, जो उन दोनों के दरमियान में नेट डिफरेंस है सिर्फ उसको पे आउट कर दें. दैट इज गोइंग टू बी अ गुड स्ट्रेटजी. By using this approach, both subsidiaries avoid at least reduce the transaction cost of the currency conversion. इस तरह से दोनों करेंसी के दरमियान में जो करेंसी कन्वर्जन की जो कॉस्ट है that can be reduced. So over time this netting arrangement has become very popular. This is the inter-subsidiary payment matrix and netting schedule. जैसे कि आपको स्लाइड के ऊपर नजर आ रहा है. Payments owned by subsidiary located in different countries, they are given to you, आपके सामने नजर आ रही हैं. And net payments to be made by the subsidiary located in, वो भी आपको नजर आ रही हैं. और आप इन दोनों पेमेंट्स का अगर comparisons करें, ये जो आपको फिगर्स नजर आ रही हैं, तो यू कैन सी के जो ऊपर वाला है ग्राफ है जो चार्ट है उसके अंदर आपको जो स्टैटिस्टिक्स नजर आ रही हैं वो बड़ी अमाउंट्स हैं, लेकिन जो नीचे वाली जो आपको ये जो टेबल नजर आ रहा है उसके अंदर अमाउंट्स छोटी हैं, क्योंकि वी आर जस्ट मेकिंग दी नेटिंग पेमेंट्स. जो नेट या जो डिफरेंस है उसको हम डील कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द होल सम पेमेंट्स. सो बेसिकली दैट इज द रीजन. So this exhibit is an example of the inter-subsidiary payment matrix that totals each subsidiary's individual payments to each of other subsidiaries. The first row indicates that the Canadian subsidiary owes to the 40,000 to the French subsidiary, the equivalent to the 90,000 to the Japanese subsidiary, and so on. During the same period, these subsidiaries also have received goods from Canadian subsidiary for which payment is due. The second column shows the Canadian subsidiary is owned equivalent to 60,000 by the French subsidiary, the equivalent of 100,000 by the Japanese subsidiaries, and so on. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मैं आपको छोटी सी लिमिटेशन बताती जाऊँ, वो ये है कि देयर कैन बी सम लिमिटेशंस टू द मल्टीलेटरल नेटिंग. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ मल्टीलेटरल नेटिंग स्केड्यूल, जहाँ पे आपने सिर्फ पेमेंट्स जो डिफरेंस इन पेमेंट्स है सिर्फ आप उसको इनकाउंटर कर रहे हैं. देयर कैन बी सम लिमिटेशंस टू द मल्टीलेटरल नेटिंग ड्यू टू द फॉरेन exchange controls. Although the major industrialized country typically do not impose such controls, some other countries do, and some countries prohibit netting altogether. अब कुछ countries की भी regulations हैं, वो हो सकता है आपको मना कर दें, they restrict the netting arrangements. Thus, an MNC with subsidiaries around the world may not be able to include all of its subsidiaries in its multilateral netting system. तो इस तरह से ये possibility है कि आपकी MNC जो है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपना मल्टीलेटरल नेटिंग सिस्टम को एस्टेब्लिश ना कर सके. ऑब्वियसली दिस विल लिमिट द डिग्री टू विच द नेटिंग सिस्टम कैन रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट. सो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन. जाहिर है कि एक कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो दूसरे कंट्री से डिफरेंट है, एंड दे मे नॉट अलाउ यू टू डू सच काइंड ऑफ मल्टीलेटरल नेटिंग सिस्टम. सो इट ऑल डिपेंड्स and how you can reduce the transaction cost. अगर ये option आपके पास available है then go for that. Now managing blocked funds.
A government may require that funds remain within the country in order to create jobs and reduce unemployment. अच्छा, एक जो यहाँ पे और रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि जो सब्सिडरी का पर्सपेक्टिव है, हो सकता है कि सब्सिडरी ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हो कि अगर उनके पास कोई मल्टीनेशनल फर्म आके अपना सेटअप करती है और अपना अपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि दे हैव टू री इन्वेस्ट दैट amount into the same country as to create jobs and to reduce unemployment, ताकि jobs create हों और उनके country को भी कुछ फायदा हो. ये block funds की arrangement है, जो से पहले मैं आपको बहुत दफा बता चुकी हूँ. How you are going to manage these block funds? An MNC can shift cost incurring activities like R&D to the host country, adjust the transfer pricing policy. अगर block funds की provision हो तो आप कुछ अपने operations को उस host country के अंदर ले आएं, ताकि आपको जो करेंसी का डिसएडवांटेज है वो ना हो और आप अपने कैश फ्लोस को ऑप्टिमाइज कर सकें. कैसे? दे कैन शिफ्ट कॉस्ट इंक्रीजिंग एक्टिविटीज सच एज लाइक R&D टू द होस्ट कंट्री, एडजस्ट द ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी सच दैट हायर फी हैव टू बी पेड टू द पेरेंट, बोरो लोकली रादर देन फ्रॉम द पोर पेरेंट. आप लोकली बोरो कर लें ताकि जो आपके कैश फ्लोज हैं, आपने जो आपका कैश आउटफ्लो होगा वो भी इंटरेस्ट पेमेंट उसी करेंसी में होगा, जो कैश इनफ्लो होगा वो भी उसी करेंसी में. आप अपने सारे ऑपरेशंस को उधर ही रखें ताकि आपका जो करेंसी लॉस है वो कम से कम हो, बिकॉज आपके जो फंड्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड और आप उनको रेमिट बैक नहीं कर सकते टू द पेरेंट फॉर सर्टेन रीजंस. तो इट कैन बी द होस्ट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन दैट यू आर गोइंग टू री-इन्वेस्ट योर मनी इनटू द सिमिलर कंट्री फॉर अ सेट नंबर ऑफ ईयर्स in order to create jobs and in order to create in order to reduce the unemployment. उससे बचने के लिए या इस सारी करेंसी कन्वर्जन से बचने के लिए आप अपने कुछ ऑपरेशंस को उस कंट्री के अंदर, होस्ट कंट्री के अंदर शिफ्ट कर लें और आप अपनी बोरोइंग भी उधर से करें, राइट? और आप अपनी उधर से ही लोकली बोरो करें रादर देन फ्रॉम द पेरेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन एक छोटी सी एग्जांपल about the managing block funds. Wittenberg Incorporation, a US based MNC, has a subsidiary in Philippines. During a turbulent period, the subsidiary has prevented from exchanging its Philippine peso into the US dollar to be sent home. Wittenberg held its corporate meeting in Manila so that it could use the pesos to pay the expenses of the meeting, that is hotel, food, etc. in peso. In this way, it was able to use local funds to cover an expense that it would have incurred anyway. आप locally उन expenses को treat करें और उनको use करें. Ordinarily, the corporate meeting would have been held in the parent's country and parent would have paid the expense. Otherwise ये होता कि parent country के अंदर होनी थी और parent country ने expense करने थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा different हो गया कि उन्होंने host country के अंदर ही वो meeting arrange कर ली and they have saved a lot of cost on food and on hotels. So this is about the managing block funds. Number 4 is managing inter-subsidiary cash transfers. Managing inter-subsidiary cash transfers. A subsidiary with excess funds can provide financing by paying for its supplies earlier than it's necessary. पहले से payment कर दें, that is known as leading. Alternatively, a subsidiary in need of funds can be allowed to lag its payment, delay its payment. That is called this technique is called lagging. जल्दी करेंगे तो leading, देर से करेंगे तो lagging. Another example, Texas Incorporation has two foreign subsidiaries called Short Hub and Long Hub. Short Hub needs funds while Long Hub has excess funds. If Long Hub purchases supplies from the Short Hub, it can provide financing by paying for its supplies earlier than necessary. पहले से आप पे कर दें, this strategy is called leading. Or alternatively, if Long Hub sells supplies to the Short Hub, it can provide financing by allowing Short Hub to lag its payment. वो Short Hub को ये allow करे, दूसरी subsidiary को ये allow करे कि वो देर से payment कर दें. That is called lagging. This technique is called lagging. So leading or lagging strategy can make efficient use of cash and therefore reduce debt. Some host governments prohibit the practice by requiring that a payment between subsidiary occur at the time the goods are transferred. कई दफ़ा ये होता है कि जो है ना सब्सिडीज खुद से लिमिट करेंगी, वो कहेंगे कि पेमेंट सिर्फ उस वक्त करें जबकि एक्चुअली गुड्स जो है वो ट्रांसफर हों. Thus an MNC need to be aware of any law that restricts such kind of strategy. तो गवर्नमेंट जो रेगुलेशंस हैं या जो उनकी
रिक्वायरमेंट्स हैं या वो किस चीज़ को प्रोहिबिट करते हैं, जैसे ब्लॉक फंड्स का मैंने आपको बताया, हो सकता है लीडिंग एंड लैगिंग से वो आपको मना करें. सो यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड कि गवर्नमेंट क्या चीज़ रिस्ट्रिक्ट कर रही है और होस्ट गवर्नमेंट जो है वो क्या चीज़ अलाउ कर रही है. So dear student, this was all about today's lecture. We are going to continue talking about the international cash management in the next lecture. See you next time. Take care and Allah Hafiz.